Students, let's continue with the geometrical construction chapter. Today we are doing practice set 5 and my channel name is Star Tuition. Okay, till now मैंने part 1, part 2, part 3, part 4 and part 5 डाल दिया है. Okay, revision करना हो तो definitely go back to my channel and वहाँ आप देख सकते all 5 parts are there. Okay, practice set 1, 2, 3, 4 we have done it. From Star Tuition. Okay, please like and subscribe my channel. Definitely so that आपको बाकी सारे प्रीवियस पार्ट्स मिल सके. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 6, प्रैक्टिस सेट 5 आई एम सॉरी. ओके, उसमें दे आर अगेन सेड टू ड्रॉ अ कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल. नाउ व्हेन आई से कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल मींस व्हाट? नाउ इन ट्रायंगल MAN, अभी क्या दिया हुआ है MAN में? मेजर एंगल MAM दिया हुआ है. कितना है MAN? 90 डिग्री. ओह दैट्स गुड. देन length AN is given. How much is AN? It is 8 centimeter. Okay. Then they are given length MN 10 centimeter. Length MN 10 centimeter. Okay. Length MN is how much? 10 centimeter. Is it very clear? Now again basic steps हम लोग start करेंगे. पहले rough diagram से start करते हैं. Okay, you have to draw a rough diagram. Now 90 degree means definitely it will be a straight line. Okay, अगर straight है और ये A है तो ये N हो जाएगा and ये M हो जाएगा. Okay, so this will be MAN. AN is given already how much? 8 centimeter. MN is given 10 centimeter. MA दिया है? No, it's not given. But angle A दिया है. What is this side? This side is known as 90 degree. A is given how much? 90 degree. Okay, let's start with the basics first. What you will do? You will take a base. Okay, and then base लेने के बाद 8 centimeter. And you will write a point A and 8 centimeter. Okay, and then with the help of a protector आप line A, point A पे रखेंगे because it's a 90 degree. तो आप वहां पे डॉट करिए and then join it. Okay, मैंने ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट हो गया. एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर तो आपने कर लिया. नाउ विद द हेल्प ऑफ अ circular or compass, what you will do? You will take a measurement of 10 centimeter. How much you will take? 10 centimeter. Okay, adjust your pencil with the circular. Okay, so that I can also adjust now. Now take a 10 centimeter. How much is this? 10 centimeter. काफी बड़ा होगा. Okay, marking किया 10 centimeter. And where you will keep it? You will keep it on N. You will keep it on N. And N पे रख के you will make a cut. N पे रख के you will make a cut. Okay, and then आप join करोगे with the help of scale. See, I have already drawn this line. Okay, मैं तो ये क्वेश्चन रब कर देती हूँ. Okay, and then from wherever the cut is there, वहां से आपको N point जोड़ना है. Okay, and this is your point M. This is 10 centimeter and this is point M. Is it very very clear? वो आगे एक्सटेंड हो रही है लाइन तो कोई बात नहीं है, आप उसको P लिख दो, नो इश्यू. ओके, बट ये आप जो कट किया है इसको एक्सटेंड मत करिए, यहाँ पे तक ही रहेगा. ओके, एंड दिस इज अ पॉइंट एंड जहां पे योर कट रेड कलर से मैंने कट मारा 10 सेंटीमीटर का. अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ इट? फर्स्ट यू विल ड्रॉ बेस 8 सेंटीमीटर. देन दिस इज अ 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, 90 डिग्री you will draw. Okay, and then आप उधर से कट मारोगे. Is it very very clear? Understood? Yes, let's do the second one. Second one में उन्होंने क्या बोला है? Construct a right angle triangle STU. एक STU बनाना है. Hypotenuse SU is 5 centimeter. Hypotenuse S
U is how much it is? 5 centimeter. And length ST is equal to 4 centimeter. Is it clear? आपको दिया हुआ है हाइपोटेनस जब भी वर्ड यूज होता है तो दैट मीन्स व्हाट? इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो फर्स्ट यू ड्रॉ द रफ डायग्राम. हाइपोटेनस नॉर्मल ट्रायंगल में नहीं होता है. ओके, इज इट वेरी क्लियर? आपको कौन सा ट्रायंगल बोला उन्होंने? राइट एंगल ट्रायंगल STU. ओके, STU बोला है तो हमारा डेफिनेटली, और ट्रायंगल दिया हुआ है SU दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया? और ST बेस है तो मेरा अगर SU है और ST बेस है तो ये S हो गया, ये T हो गया. ओके, दिस इज 4 सेंटीमीटर. बिकॉज SU दिया हुआ है तो मुझे इधर U मार्क करना, इधर S मार्क करना. आई कैन नॉट पुट S हियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्यों मैं S यहां नहीं डाल सकती? बिकॉज SU दिया हुआ उन्होंने, इट इज 5 सेंटीमीटर. दिस इज 5 सेंटीमीटर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो T मुझे क्यों नीचे लिखना पड़ा? इज इट वेरी क्लियर? नाउ टेक अ बेसिक सेंटीमीटर. आप ले लो. बेसिक कितना है? 4 है. वो ड्रॉ किया. पुट अ नेम TS एंड 4 सेंटीमीटर आप लिखो वहां पे. यस, एंड टेक अ मेजरमेंट ऑन T, दैट इज 90 डिग्री. उसके ऊपर रखो एंड 90 डिग्री का मार्किंग करो T के ऊपर, बिकॉज T इज एंगल 90. ड्रॉ इट स्ट्रेट, ज्वाइन विद द T पॉइंट, 90 डिग्री. ओके, एंड उसके बाद आपको कट करना है. कितना सेंटीमीटर कट करना है आपको? 5 सेंटीमीटर आपको कट करना है. सो आई टेक अ स्केल, आई मेजर इट 5. पहले 10 था ना तो काफी बड़ा होगा आपका. अब उसको हाफ करके 10 तक ले आओ, 5 तक ले आओ. ओके, 5 हो गया. एंड वेयर यू विल कीप योर दिस? यस, सर्कुलर कहाँ रखोगे आप? इस S के ऊपर रखोगे. S के ऊपर रख के मैं कट मारूंगी. ओके, S के ऊपर रख के मैंने कट मारा. बहुत छोटा डायग्राम बनेगा बिकॉज 5 सेंटीमीटर ही बोला है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड देन S और ये पॉइंट ज्वाइन हो जाएगा. इसको थोड़ा कम छोटा कर दो. ओके, दिस यू कैन पुट इट एज P. दिस इज योर U. दिस इज 5 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? Yes? Is it very clear? This way you will draw a triangle STU. Is it clear? Understood? Any doubt till here? अगर नहीं डाउट है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन डेफिनेटली ऑन रखना. अपने फ्रेंड्स लोग से के साथ शेयर करिए ताकि दे शुड ऑल्सो गेट बेनिफिटेड. एंड प्लीज, माई चैनल नेम इज स्टार ट्यूशन फ्रॉम सरिता मौर्य. Yes? So let's start with the next one. Next one, what they are saying now? Question number 3. In triangle ABC, length AC is equal to 7.5 centimeter. Now you have to draw a triangle ABC where length AC is equal to 7.5 centimeter. Yes? And measure angle ABC is 90 degree. So measure angle ABC is equal to 90 degree. Okay, and then they mentioned length BC 5.5 centimeter. Length BC कितना है? 5.5 centimeter. Okay, understood? चलो let's draw it. पहला बेस बनाएंगे हम लोग. रफ डायग्राम. yes 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 definitely yes. 90 डिग्री बोला है तो शेप भी 90 डिग्री का ही होगा. ओके, रफ डायग्राम. आई एम नॉट डन विद द स्केल, पर आपको बनाना. बी बीच में है इसलिए बी इधर आएगा. BC दिया हुआ है और ये हो गया ABC. तो AC इज हाउ मच? 7.5 सेंटीमीटर. BC इज हाउ मच? 5.5 सेंटीमीटर. दिस इज 90 डिग्री. अंडरस्टूड? यस. तो चलो बेस बनाते हैं पहले. बेस हमारा कितना होगा? 5.5. I will put a name BC 5.5 centimeter and then we keep your D over here.
अब डी यहां रखेंगे, एग्जैक्टली विल पुट अ 90 डिग्री के हिसाब से ज्वाइन करेंगे, बी के साथ वो ज्वाइन हो जाएगा। ओके, एंड देन अगेन विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड सर्कुलर आप कितना लोगे? हाउ मच इज AC? 7.5 सेंटीमीटर। विल टेक अ 7.5 और 7.5 थोड़ा बड़ा है, ओके, एंड देन विल पुट ऑन द C एंड जो लाइन आपने ड्रॉ की है AB उसके ऊपर कट मारेंगे। ओके, I'll just rub it here question. Can you see? थोड़ा सा मैं वो लाइन को एक्सटेंड कर देती हूँ जिसके ऊपर मैंने कट मारा है। ओके, आपको क्लियर दिखेगा भी। वापस से मैं एक बार चाहिए तो करती हूँ, सी के ऊपर रख के कट। अंडरस्टूड? Yes, and then what you will do? You will join with this point C and the cut where you have done it. Okay, and you will name it as A. ये लाइन P हो गई, लेकिन ये आपने A मेंशन कर दिया। This is your 7.5 सेंटीमीटर and this is 90 degree. Is it very very clear? See, इतना neat and clean your geometric construction should be, because more that scratching, overwriting is there, your marks will get cut. Okay, in geometric construction, very much clear it should be your picture. Okay, understood the third one? Let's do the fourth one. What is fourth one they have said? They have said in triangle PQR, length PQ is equal to 4.5 centimeter, length PR is how much? 11.7 centimeter. Then they mention angle Q is equal to 90 degree. Okay, angle Q कितना है? क्योंकि PQR लिखा है बीच का एंगल है 90 डिग्री. Okay, Q is how much? 90 degree. चलो let's draw with the base. Rough diagram first. राइट एंगल है तो राइट एंगल का शेप निकालेंगे हम लोग विद द स्केल एंड पेंसिल. Here it will be Q because it's 90 degree. Here it is P, that is 4.5 centimeter. Okay, and क्या दिया हुआ उन्होंने? PR. What they have given? PR they have given. PR कितना है? 11.7 centimeter. 11.7 centimeter is PR. Okay, triangle PQR where angle Q is given 90 degree. P दिया है क्या उन्होंने? नहीं. And then PR दिया हुआ है. Is it very clear? चलो ड्रॉ करेंगे. पहले बेस बनाएंगे हम लोग. बेस कितना रहेगा? Base will be how much? It is 4.5. So this is your 4.5 base. You will mention it QP and this is you will write it 4.5. Okay, I don't have a place but please write it 4.5 centimeter. Okay, नीचे लिख लिया and then आप with the help of a D on Q you will keep it. तो लंबा बनेगा ये. Make a tick. Join the Q with the point. Okay. Then with the help of your circular, how much it has to be there? कितना होना चाहिए? 11.7. थोड़ा बड़ा बनेगा इसलिए मैंने बोला थोड़ा दूर रहेगा ये. Okay. 11.7 I have measured and then you will keep it on P. P पे रख के you will make a cross. Keep it on P, make a cross like this. Okay. अभी सिंस मेरे पास वहां जगह नहीं है, अगेन आई विल डू इट व्हाट, आई विल मेक अ क्वेश्चन मार्क. जो क्वेश्चन है वहां पे उसको मैं रब कर रही हूँ, पर आपकी नोटबुक में तो काफी स्पेस होगा. ओके,
तो वो ध्यान देना, इट शुड बी बिगर इन साइज। ओके, कट हो गया एंड देन पी को आप उससे ज्वाइन कर दोगे। इज इट क्लियर? दिस विल बी योर आर एंड दिस इज क्यू इज 90 डिग्री एंड योर आरपी कितना है? ये 11.7 सेंटीमीटर। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड? कैसे करना है? एनी डाउट? किसी किसी बुक्स में कहीं कहीं पे आपने क्यू इससे ड्रॉ किया है एंड दिस वे यू हैव डन हाइपोटेनस, नो इश्यू। आप ऐसे भी कर सकते हो और बोथ द साइड में कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे यू पुट एरो मार्क, इसको आप टी मेंशन कर दो और ये जो पॉइंट है जहां मिले उसको आर मेंशन किया मैंने। इज इट वेरी क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सिर्फ बेसिक्स है, पर स्लोली स्लोली करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। चैप्टर बहुत टफ नहीं है, पर जितना करोगे नहीं तो फिर वो आएगा नहीं, इसलिए प्रैक्टिस बराबर करना, सेंटीमीटर्स बराबर रखना, डिटेल्स जरूर लिखना। डिटेल्स लिखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या ड्रॉ करना है एग्जैक्टली। ओके, अंडरस्टूड? यस, so let's start with the fifth one. That is the last question of this practice set. In triangle BOX, what is the triangle name? BOX, measure angle O is equal to 90 degree. Okay, then there is length OX जो कितना है दिया हुआ उन्होंने 6 सेंटीमीटर they have given. Okay, and then length BO is 4.5 centimeter. Length BO 4.5 centimeter. So let's draw with the diagram first. Base rough diagram. ये 90 डिग्री है, मतलब ये O हो गया। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड OX 6 सेंटीमीटर है तो मैं ये X मेंशन करती हूँ। BO दिया हुआ उन्होंने, हाउ मच इट इज? 4.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ दिस टाइम इट इज कट दिस साइड। सो व्हाट यू विल डू? फर्स्ट यू विल ड्रॉ द बेस। कितना बेस है हमारा? 6 सेंटीमीटर का बेस है। मेक अ स्ट्रेट लाइन 6 सेंटीमीटर। ओके, पुट अ नेमिंग हियर OX और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, देन वेयर यू विल कीप अ D to protect your D will be here. ओके, और ये हो गया 90 डिग्री का मार्किंग। देन मेक अ स्ट्रेट लाइन, ज्वाइन विद द डॉट विद द O पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ओके, एंड O पॉइंट ज्वाइन होने के बाद ऑफ कोर्स उसको आप मेजर, उसको लिख सकते हो आप एक M पॉइंट। ओके, एंड देन विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर यू हैव मेक अ कट ऑफ 4.5। 4.5 की तरह आप देखो। यस, आपका इधर पहले 11 लिया था ना, इसलिए बड़ा है वो, अभी छोटा कर लो, 4.5 कर दो। ओके, एंड देन 4.5 करने के बाद कीप इट ऑन O एंड मेक अ कट। ओके, एंड वंस यू हैव कटेड, जहां पे कट हुआ है एंड X के साथ ज्वाइन कर दो। and put a name here B. This is how much? 4.5 centimeter. This is exactly 90 degree. See, every labeling is very very important. अगर लेबलिंग नहीं करोगे, इनफैक्ट यहाँ भी लेबलिंग करो, जहां पे मैंने नहीं लिखा है एवरी, इसमें आप लिखो रफ फिगर। क्या लिखोगे? हेडिंग में या डाउन, रफ फिगर, so they know that this is fair and that is rough figure. Understood the practice set 5? It's very easy, but only you have to be very careful with the details what you are writing. जितना आप अच्छे से डिटेल्स लिखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। Is it very very clear? Understood? Yes. Now let's do it with the practice set 6 हम करते हैं, लेकिन practice set 6 समझने के लिए सेशन बड़ा हो जाएगा, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को ऑन रखना। ओके, थैंक यू।